once again welcome to MathAbyte. In the previous lecture we have completed logarithm and now we'll be starting off with coordinate geometry. As I have told earlier, it consists of straight lines, circle, parabola, ellipse and hyperbola. These three topics are really important from the perspective of JEE Mains. You can't leave them behind. We'll be starting off with straight lines. Before starting straight lines, there are some prerequisites like properties of parallelogram, square, rhombus and rectangle. In parallelogram, we know opposite sides are equal and their diagonals bisect each other. Next up is rhombus. Adjacent sides are equal and its diagonal bisect at 90 degree. Next is rectangle. All angles are 90 degree, opposite sides are equal, and diagonals bisect at 90 degree. Then square. It looks like a rectangle though. Adjacent sides are equal, diagonals bisect at 90 degree. And also in rectangle and square, diagonals are equal. You must be knowing that. And in the junior classes you must have done section formula. Let the coordinates be xy, y1 and x2, y2, and it divides the segment into ratio of m:n. Then the abscissa is given by m of x2 plus n of x1 upon m plus n. Y is equals to m of y2 plus n of y1 upon m plus n. This is the formula for internal bisection. For external bisection, then the ratio is m:n is xy is x2, y2, x1, y1, and x is given by mx2 minus nx1 upon m minus n, my2 minus ny1 upon m minus n. You have done this in previous classes, nothing new.
just you have to memorize it again for the in the coming questions. Now, what is straight line? लाइन सेगमेंट की डेफिनेशन आपको पता है, इट्स द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. स्ट्रेट लाइन इज नथिंग, इट इज़ द लोकस ऑफ अ पॉइंट पासिंग थ्रू टू पर्टिकुलर पॉइंट्स इन अ स्ट्रेट मैनर. लोकस मैं आपको समझा दूँ, लोकस इज़ अ पाथ ट्रेवल्ड बाय अ पॉइंट अंडर अ गिवन कंडीशन. लोकस सुन के घबराना नहीं है, इट्स जस्ट द पाथ. यही है, ये टू पर्टिकुलर पॉइंट से एक लाइन सेगमेंट पास हो रही है, ये उसी पॉइंट, ये पॉइंट उसी रास्ते को कंटिन्यू कर रहा है बस, तो स्ट्रेट लाइन बन जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है. और यू कैन से इट्स सॉरी इट्स टिल्टेड, it's a locus passing through a particular point inclined at a particular angle to the axis. कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिससे पास कर रही है एट अ पर्टिकुलर एंगल विद द एक्सिस, और ये हम हमेशा पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन से लेते हैं इस एंगल को. अभी आपको समझ आएगा जब मैं फॉर्म्स बताने लगा हूँ. नेक्स्ट अप इज़ फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन. Before that, slope, or you can say gradient. It is nothing but tangent of angle with the x-axis. जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल थीटा बना रही है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, तो इसका जो स्लोप होगा दैट विल बी नथिंग बट tan ऑफ थीटा. ये रिप्रेजेंट करता है कि कितने इंक्लाइंड है टुवर्ड्स द एक्सिस. और अब आती हैं फॉर्म्स ऑफ स्ट्रेट लाइन. First up is slope intercept form. Which is given by y is equals to mx plus c. There m is slope, जो कि होता है tan theta, जो अभी हमने देखा. और जब हम when we put x is equals to 0, then y is equals to c. x0 yc, x0 yc. और मैंने अभी आपको बताया, जो मैंने डेफिनेशन बताई है स्ट्रेट लाइन की, इट इज़ द लोकस ऑफ कर्व पासिंग थ्रू अ पर्टिकुलर पॉइंट मेकिंग एन पर्टिकुलर एंगल विद द एक्सिस थीटा. y is tan theta x plus c, which is written as m. y is equals to mx plus c. ये याद रखना है आपको. ये फर्स्ट फॉर्म है. नेक्स्ट वन इज पॉइंट स्लोप फॉर्म. प्रीवियस केस में स्लोप और इंटरसेप्ट दिया होता, इस केस में पॉइंट एंड स्लोप दिया हुआ. लेट्स से द गिवन पॉइंट इज x1 y1 और ये थीटा एंगल बना रहा है विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस. एंड एक जनरल पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं x, y. इट्स जस्ट अ जनरल पॉइंट. तो इसकी लेंथ क्या होगी?
y1 माइनस y और इसकी लेंथ x1 माइनस x, और ये एंगल थीटा होगा क्योंकि ये पैरेलल टू x एक्सिस हमने ड्रॉ करी है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। tan थीटा इज इक्वल्स टू y1 माइनस y अपॉन x1 माइनस x, इसको y माइनस y1 लिख दूँ और x माइनस x1 लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किए। tan थीटा इज नथिंग बट स्लोप, which implies y minus y1 is equals to m into x minus x1। ये आपकी सेकेंड फॉर्म, पॉइंट स्लॉप फॉर्म। नेक्स्ट वन इज 2 पॉइंट फॉर्म। This angle is theta। अब 2 पॉइंट्स किया मैंने, x1 y1 एंड x2 y2, सिमिलर जैसे हमने पिछले केस में किया है। दिस इज y2 माइनस y1 एंड दिस इज x2 माइनस x1। स्लोप निकाल सकते हैं हम y2 माइनस y1 ऑन x2 माइनस x1, और यही पुट कर दे रहा है हमें पिछले केस में, y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड टू x माइनस x1। दिस इज योर 2 पॉइंट फॉर्म। नेक्स्ट अप इज इंटरसेप्ट फॉर्म। इसमें आपको इंटरसेप्ट दिया होगा, this is the equation of, this is the line, sorry, not equation. Let's say x intercept is a and y intercept is b। तो अब आप कॉमन सेंस लगाओ, ये लेंथ b है तो ये कोऑर्डिनेट क्या होगा 0, b, और ये कोऑर्डिनेट क्या होगा a, 0। अभी हमने 2 पॉइंट फॉर्म पढ़ी, अब मैं इस पॉइंट को मान रहा हूँ अपना x1 y1 और इसको मान रहा हूँ x2 y2। y माइनस y1 इज 0 अपॉन y2 माइनस y1 b माइनस 0 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 क्या था a। y इज इक्वल्स टू b अपॉन माइनस a इंटू x माइनस a, b को नीचे लाया मैं डिनोमिनेटर में, माइनस x बाई a प्लस 1, x बाई a प्लस y बाई b इज इक्वल्स टू 1। दिस इज योर इंटरसेप्ट फॉर्म। याद रखो, x इंटरसेप्ट x के डिनोमिनेटर में, y इंटरसेप्ट y के डिनोमिनेटर में इज इक्वल टू 1। बहुत आसान है। नेक्स्ट इज योर नॉर्मल फॉर्म और परपेंडिकुलर फॉर्म। दिस इज योर लाइन। परपेंडिकुलर फॉर्म में क्या होता है, आपको ओरिजिन से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पता है। ये ओरिजिन है हमारा 0, 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस p पता है,
और इसका एंगल पता है अल्फ़ा। तो दिस इज़, अगर मुझे ये निकालना है जो मेरा एक्स इंटरसेप्ट है तो वो क्या होगा, देखिए पी पता है, अल्फ़ा पता है। तो अगर मैं सीकेंड थीटा निकालूँ, सीकेंड अल्फ़ा इज़ हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज इज़ इंटरसेप्ट, अभी के लिए ए कह देते हैं जो हमने पिछले केस में देखा था, एंड बेस इज़ पी इटसेल्फ। तो ए इज़ पी सेक अल्फ़ा। This whole angle is 90 degree. This is 90 minus alpha. This is a perpendicular 90 degree. Then this angle is also alpha. ये अल्फ़ा है, मुझे सामने परपेंडिकुलर पता है, और ये हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो कोसिकेंट अल्फ़ा इज़ हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। अभी बी कह देते हैं जो हमने पिछले केस में बाय इंटरसेप्ट कहा है। Perpendicular is P, B is P cosecant alpha। पिछले केस ये था, x is P sec alpha plus y is P cosecant alpha is equals to 1। x cos alpha plus y sin alpha is equals to p। This is your normal form or perpendicular form। Now next up is angle between two lines। ये एक लाइन है जिसका स्लोप से m1 है, इसका स्लोप m2 है। तो एक एक्यूट एंगल बना रहा होगा ये थीटा, और एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा होगा ये 180 डिग्री माइनस थीटा। लीनियर पेयर है, 180 डिग्री होता है, आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ ही रखा है। सो इससे पहले कि मैं आगे जाऊँ, tan a माइनस बी शायद आपने अब तक पढ़ लिया होगा अपने NCERT में। इज़ नथिंग बट tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। दिस इज नथिंग बट tan थीटा, स्लोप इज़ नथिंग बट tan थीटा। अब मुझे एंगल ये निकालना है और मुझे tan a पता है विद एक्सिस, यू कैन से नाउ यूजिंग दिस प्रॉपर्टी tan थीटा, जो एंगल हमारा इनके बीच में आ रहा है, इज़ m1 माइनस m2 अपॉन में 1 प्लस 1 m2। टू बी प्रिसाइज, जो हम कहते हैं कि एंगल इनके बिटवीन द लाइंस tan थीटा होना चाहिए वो प्लस माइनस 1 माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 होना चाहिए। बट हम जनरली एक्यूट एंगल ही हमसे पूछा होता है और वही निकालना होता है, तो हम इसका मॉड्यूलस लेते हैं। मॉड कैन नेवर बी नेगेटिव, तो ये एलिमिनेट होके बाहर सिर्फ पॉजिटिव बचता है। ये तो था जब हमें स्लोप पता है। इफ़ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज़ गिवन, लेट्स से टू लाइन्स आर a1x
plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ये मैं आपको बताऊंगा कि इसको अगर मैं उस तरीके से लिख लूँ जो हमने फर्स्ट लिखा था स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो b1y इज इक्वल्स टू माइनस a1x minus c1, then y is equals to minus a1 by b1 x minus c1 by b1। अब कंपेयर करूँ इसको मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से, तो मेरा स्लोप क्या आ गया, m1 कहते हैं इसको, माइनस a1 बाई b1। सिमिलरली सेकेंड लाइन के लिए क्या आ जाएगा, m2 इज इक्वल्स टू माइनस a2 by b2 और tan of theta where theta is the angle between the two lines minus a1 by b1 प्लस फॉर्मूला में पुट किया मैंने tan theta is equals to m1 minus m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मैं मॉड्यूलस में ही रख रहा हूँ क्योंकि हमें एक्यूट एंगल निकालना है। एलसीएम ले लिया, यहाँ आपने नोटिस किया होगा मैंने साइन चेंज कर दिया मॉड्यूलस के अंदर। अब इसको थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफली समझा देता हूँ। लेट्स से दिस इज़ द स्ट्रेट लाइन फॉर y इज इक्वल्स टू x, क्योंकि y इंटरसेप्ट 0 है और इसका स्लोप 1 है। स्लोप 1 मतलब 45 डिग्री, tan 45 1 होता है। अब मैं y इज इक्वल्स टू मॉड x लिख दूँ इसी कंडीशन में, तो क्या होगा, y नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि मॉड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। ये जो है वो मूव कर जाएगा ऊपर की तरफ, नीचे से वैल्यू हट जाएगी और ऊपर चला जाएगा। इस कंडीशन में हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं, इज इक्वल्स टू x फॉर x ग्रेटर दैन 0 माइनस x फॉर x लेस देन 0। अब सिमिलर फैशन में दिस इज द लाइन फॉर y इज इक्वल्स टू माइनस x आता है 135 डिग्री में, tan 135 डिग्री इज -1। और अब मैं इसका मॉड कर दूं तो नेगेटिव वैल्यूज़ y यहाँ पे नेगेटिव आ रहा है वो ऊपर चली जाएगी। तो इस केस में क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू माइनस x और x लेस देन 0 एंड माइनस ऑफ माइनस x और x ग्रेटर देन 0। ये सेम कंडीशन आ गई। यही मैंने आपसे पहले कहा था कि माइनस एक्स का मॉड इज़ सेम एज एक्स का मॉड, यही हमने यहाँ पे यूज़ किया है। नाउ कंडीशन फॉर पैरेलल। अब अगर लाइन्स पैरेलल हों तो उनके बीच में एंगल क्या होता है, 0। तो tan 0 इज़ 0 और हमारा फॉर्मूला क्या था, 1 माइनस m1 m2 अपॉन में 1 प्लस m1 m2। अब ये 0 है तो न्यूमरेटर 0 विच इम्प्लाइज m1 इज इक्वल्स टू m2। यही है कंडीशन फॉर पैरेलल। और अभी हमने क्या डिफाइन किया था, m1 क्या है माइनस a1 बाई b1 एंड m2 क्या है माइनस a2 बाई b2।
माइनस से माइनस हटा, और a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2। ये कंडीशन आपने कभी देखी है? जब इज इक्वल नॉट इज इक्वल टू c1 बाई c2, ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ रखी है। यही कंडीशन होती है ना नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस की। नाउ कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर लाइंस। परपेंडिकुलर लाइंस होंगी तो एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। m1 माइनस m2 1 में 1 प्लस m1 m2। tan 90 डिग्री क्या होता है? इन्फिनिटी पे जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो 1 प्लस m1 m2 इज़ m1 माइनस m2 अपॉन tan 90 डिग्री। ये इन्फिनिटी को जा रहा है। एनीथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज़ ज़ीरो, बिकॉज इन्फिनिटी बहुत लार्ज नंबर होता है। जैसे जैसे हमारा डिनोमिनेटर बड़ा होता जाता है तो ओवरऑल वैल्यू छोटी होती जाती है, और ये इन्फिनिटी को जा रहा है, और इन्फिनिटी इज़ अ नंबर विच इज़ ग्रेटर दैन व्हाट यू कैन थिंक। तो ये वैल्यू ज़ीरो को टेंड करेगी, विच इम्प्लाइज 1 प्लस m1 m2 इज़ ज़ीरो, m1 m2 इज़ इक्वल्स टू -1। m1 क्या था हमारा? माइनस ऑफ a1 बाई b1 इंटू माइनस ऑफ a2 बाई b2 इज इक्वल्स टू -1। a1 a2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ b1 b2। a1 a2 प्लस b1 b2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। ये कंडीशन होती है परपेंडिकुलर लाइंस की। अब ज़रा सा सोचो, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, पहले तो हम उसकी कंडीशन निकाल चुके हैं, a1 बाई a2 इज़ इक्वल्स टू b1 बाई b2। जब क्योंकि स्लोप इक्वल होती हैं तो लाइंस पैरेलल हैं। अगर उनका इंटरसेप्ट्स इक्वल नहीं हैं तभी वो पैरेलल है। अगर वो इक्वल हो तो कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है। तो a1 बाई a2 इज़ इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज़ इक्वल्स टू c1 बाई c2 हो जाए, इंटरसेप्ट भी बराबर हो जाएँ तो लाइन तो सेम ही रही ना। ऐसा हमारा जूनियर क्लासेस में हमें बेवकूफ़ बनाया जाता था, लाइक 2x प्लस 4y प्लस 18 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब इसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 6x प्लस 12y प्लस 54 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, और यही होता था। अब इसका रेशियो निकालोगे तो 1:3 आएगा, तीनों का बराबर, तो सेम लाइन की इक्वेशन है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर दो लाइन का स्लोप्स इक्वल नहीं है तो वो कहीं ना कहीं तो मीट करेंगी। m1 क्या है? माइनस a1 बाई b1 इज नॉट इक्वल्स टू माइनस a2 बाई b2, विच इम्प्लाइज a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। और यही कंडीशन हमने जूनियर क्लासेस में पढ़ी थी। इसी कंडीशन में हम कहते थे कि देयर एग्जिस्ट अ सॉल्यूशन, और जब a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज इक्वल्स टू c1 बाई c2 आ जाए तो हम कहते थे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और a1 बाई a2 इज इक्वल्स टू b1 बाई b2 इज़ नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, तो पैरेलल लाइन्स आ जाती थी, जिस केस में हम कहते थे देयर डजंट एग्जिस्ट एनी सॉल्यूशन। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है, यू हैव टू फाइंड द एंगल बिटवीन द स्ट्रेट लाइन्स y इज इक्वल्स टू 2 minus root 3x plus 5 and y is equals to 2 plus root 3x minus 7। तो इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से अगर कंपेयर करें, इसका स्लोप क्या है? m1 लिखते हैं, दिस इज़ 2 माइनस रूट 3, और इसका स्लोप क्या है? m2 इज इक्वल्स टू 2 प्लस रूट 3। एंगल निकालना है तो tan थीटा इज़ मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। 2 माइनस रूट 3 माइनस 2, सॉरी माइनस आ जाएगा, माइनस रूट 3 अपॉन
1 plus this is a minus b into a plus b, a square minus b square so this will give you न्यूमिनेटर में आ जाएगा -2√3 अपॉन 2 का मॉड, तो √3 आ जाएगा tan थीटा, और √3 किस पे आता है 60 पे, दिस इज π/3. Now last form is distance form or parametric form. इसमें एक पॉइंट गिवन है x1 y1 जिसका हमें xy से डिस्टेंस r गिवन है. अब हमें tan थीटा पता है क्या होता है, ये हम देख चुके हैं, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1. नाउ sin थीटा अपॉन cos थीटा दैट इज tan थीटा. और मैं बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कुछ अलग नहीं कर रहा, या आपको रीअरेंज कर रहा हूँ. तो y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल्स टू x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा. अभी जो मैंने पीछे एक डायग्राम बनाया उसकी मैं छोटी सी यहाँ पे बना दूँ, तो वही जो हमने पहले करी है चीज़ें, ये y माइनस y1 है, ये x माइनस x1 है, ये थीटा है, ये r है. तो cos थीटा इज़ नथिंग बट x minus x1 upon r, and sin theta is nothing but y minus y1 upon r. तो इससे मैं ये लिख सकता हूँ x minus x1 upon cos theta is equals to r, और इससे मैं लिख सकता हूँ y minus y1 upon sin theta is equals to r. तो x minus x1 upon cos theta is equals to y minus y upon sin theta is equals to r. This is your distance form or parametric form. अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम. क्वेश्चन है reduce the line 2x minus 3y plus 5 is equals to 0 in slope form. Intercept form, and normal form. First up is slope form. So 2x minus 3y, slope intercept form. तो वही जैसे मैंने आपको समझाते टाइम पे बताया है, इसको मैं उधर ले गया 3y को, y is equals to 2/3 x plus 5/3. This is my slope, this is my intercept. हो गया फर्स्ट पार्ट.
Now second part is intercept form. 2x minus 3y plus 5 is equals to 0. इसको मैं उधर ले जाऊँ, 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -5 और -5 से दोनों साइड डिवाइड कर दूँ, देन -2x by 5 प्लस 3y by 5 is equals to 1. So x is equals to minus of 5 by 2. Y is equals to 5 by 3 is equals to 1. इंटरसेप्ट फॉर्म हो गई. नेक्स्ट अप इज नॉर्मल फॉर्म. इसको पहले इस तरीके से अरेंज कर दिया है. माइनस से मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं तो x इज इक्वल्स टू 5. अब नॉर्मल फॉर्म निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको, y कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस x कोफिशिएंट का स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यही होगा. दिस इज़ 3 स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर, 9 प्लस 4 का रूट इज √13. दोनों साइड √13 से डिवाइड कर दें. ये हो गया आपका. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुड क्वेश्चन. इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आते भी हैं जेईई मेंस में. रेक्टेंगल हैज़ अपोजिट vertices at 1, 2 and 5, 5. If other vertices lie on x is equals to 3, find other vertices of rectangle. एक बार एक रफ फिगर ड्रॉ कर लें तो एक अच्छी इमेज बन जाती है. This is 5, 5. This is 1, 2. And क्या कह रहा है? Other vertices lie on x is equals to 3. ये x is equals to 3 लाइन है. This is 5, 5. This is 1, 2. x is equals to 3 है तो थ्रू आउट x कांस्टेंट है. दिस पॉइंट इज 3, 0. यहाँ कोई पॉइंट हो 3, 3, 3, -9, तो ये सारे इसी पे लाइन करेंगे. तो इसका मैं जनरल कोऑर्डिनेट लिखना हो तो मैं लिखूँगा 3, अल्फ़ा और इसका मैं लिख देता हूँ 3, बीटा. नो अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि जो इसके डायगोनल्स हैं बाइसेक्ट करते हैं. तो हमें दो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं 1, 2 एंड 5, 5. इससे एक डायगोनल बनेगा तो मुझे उसका मिड पॉइंट पता लग जाएगा. वो क्या होगा 1 + 5/2
2 plus 5/2, which is 3,7/2. 3,7/2 जनरल सी बात है, ये भी उसी लाइन पे लाई करेगा जो हमारी दी हुई है गिवन क्वेश्चन में। नाउ हमारे दूसरे कोऑर्डिनेट्स क्या थे, 3, एंड 3, अब इनसे अगर मैं निकालूं तो मेरा क्या बनेगा, 3, प्लस β/2, और ये पॉइंट सेम है, विच इम्प्लाइज अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 7। और दूसरी कंडीशन मैं निकाल सकता हूँ, आपको बताया था लेंथ ऑफ डायगोनल्स भी इक्वल है, तो इन दोनों पॉइंट को यूज़ करके क्या आ जाएगा, 5 - 2 का स्क्वायर प्लस 5 - 1 का स्क्वायर। नाउ with these 2 points this will be 0 square plus alpha minus beta square. This is 9 plus 16 root, which is here is alpha minus beta mod. ऑलवेज रिमेंबर, जब भी हम रूट से कुछ बाहर निकालते हैं तो मॉड्यूलस आता है, हम पॉजिटिव वैल्यू ही कंसीडर करी जाती है, रूट के अंदर नेगेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। जनरली जब हम रूट ऑफ 4 निकालते हैं तो हम +-2 निकाल देते हैं, पर रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करती, ये याद रखिएगा, हमेशा मॉड्यूलस आता है। नाउ दिस इज़ √25 विच इज़ 5, अल्फ़ा माइनस बीटा का मॉड, विच इम्प्लाइज अल्फ़ा माइनस बीटा इज़ +-5। अब आपके पास 2 इक्वेशन आ गए हैं, 2 वेरिएबल हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 7, और फर्स्ट केस ये कंसीडर कर लेते हैं कि अल्फ़ा माइनस बीटा इज 5। नाउ एडिंग दीज टू अल्फ़ा इज़ 12, अल्फ़ा इज़ 6, अल्फ़ा 6 है तो बीटा 1। नाउ केस 2, where alpha plus beta is 7 and alpha minus beta is -5. Now adding these two alpha is 2, alpha is 1, then beta is 6. वैल्यू इंटरचेंज हो रही है पर हमारे कोऑर्डिनेट्स तो वही रहेंगे, विच इम्प्लाइज अदर 2 कोऑर्डिनेट्स आर 3,1 and 3,6. Now last question for the day. Equation of straight line that passes through the point 3,4 and perpendicular to 3x plus 2y plus 5 is equals to 0. अब परपेंडिकुलर की कंडीशन दी हुई है, व्हाट इज़ द स्लोप ऑफ दिस लाइन, ax प्लस by प्लस c। जब इस तरह के स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दी हो तो स्लोप हमने देखा क्या होता है, माइनस ऑफ a/b। तो स्लोप क्या हो गया इस लाइन का, लेट्स से m1 इज़ -3/2 एंड परपेंडिकुलर की कंडीशन हमने देखी थी, m1 m2 इज़ -1, m1 क्या है -3/2, तो m2 क्या होगा, m2 इज़ 2/3। अब मुझे स्लोप पता है, पॉइंट पता है, तो हम स्लोप पॉइंट फॉर्म जो हमने सेकंड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, y - y1 इज इक्वल्स टू m इंटू x - x1, 3y - 12 इज इक्वल्स टू 2x - 6, 2x - 3y
प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। ये है स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो हमें निकालनी थी। नाउ बिफोर फिनिशिंग द लेक्चर देयर आर सम homework questions for you. You can pause the video and write that down, and 2 other questions below. Now that's all for today. See you in the next lecture.